Good morning, everyone. In the previous class, we had done illustrations of depreciation. And in one of those illustrations, we used written down value method of depreciation. We also saw in that depreciation that a part of machine was being sold. Okay. So first, any doubts up to there, anyone? No? Okay. So first of all, let's write the points or notes. What is to be done when only a part of an asset is being sold? We had done this practically in the previous illustration. Now let's write down the points. Heading likho, if only a part of an asset is being sold. First point, divide the opening value of asset in the year of sale into two parts. A, part being sold, कैसे निकलेगी उसकी वैल्यू? Equals original cost of the part upon original cost of the asset into opening value of asset. Now if you see what we had done, 6 lakh was the cost of the part upon cost of the whole machinery was 15 lakh. So we did 6 lakh upon 15 lakh into 12 lakh 48,750. This was the balance of the asset in the beginning of the year of sale. So this is how we calculated the opening value of part being sold. B point, value of remaining part equals opening value of asset minus opening value of part being sold. ये हमने किया था 12,48,750 में से पार्ट बीइंग सोल्ड की वैल्यू हमने लेस कर दी थी, तो हमारे पास आ गई थी रिमेनिंग पार्ट की वैल्यू. Second point, divide the depreciation on asset in the year of sale also into two parts. On the part being sold, on remaining part. ये भी हमने कैलकुलेट किया था फिर. जो पार्ट सेल हो रहा है उस पे कितनी डेप्रिसिएशन है अप टू द डेट ऑफ सेल, और रिमेनिंग पार्ट पे पूरे साल की डेप्रिसिएशन कितनी है. Written. Then show the breakup of the opening value of asset in the asset account and treat the two parts as two different assets. Here what we had done, two balance brought down, जो part sell होना है उसकी opening value separately दिखाई, remaining part की separately दिखाई, फिर दोनों का total करके asset की balance brought down दिखाया. Then fourth point, post the entries for sale of the part. जो पार्ट सेल हो रहा है
उससे रिलेटेड हमने एंट्रीज पोस्ट की, पहले डेप्रिसिएशन, फिर बैंक, फिर लॉस ऑन सेल। फिफ्थ पॉइंट, चार्ज एनुअल डेप्रिसिएशन ऑन रिमेनिंग एसेट एट द एंड ऑफ ईयर। उसके बाद हमने क्या किया था, ये जो रिमेनिंग पार्ट था 749,250, इस पर हमने डेप्रिसिएशन चार्ज की थी एंड ऑफ द ईयर में, पूरे साल की 74,925। और जो एक और हमने मशीन खरीदी थी 7,50,000 की, उस पर भी 3 मंथ्स की डेप्रिसिएशन हमने चार्ज की थी ईयर एंड में, और फिर मशीनरी अकाउंट को क्लोज कर दिया था बैलेंस करके। आर दीज पॉइंट्स क्लियर? Is this screen visible? Okay, write down this question. A machine is purchased on April 1, 2018 and sold on September 30th, 2020 for rupees 57,000 at a loss of rupees 600. मतलब कितने टाइम के बाद सेल हो रही है? 1 अप्रैल 18 से 31 मार्च 19 तक 1 ईयर, फिर 1920 वाला सेकेंड ईयर, और फिर 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2020 तक 6 मंथ्स और। तो 2.5 years we have used this machine. Find out the cost of machine. अब इंटरेस्टिंग चीज ये है, निकालना क्या है हमें? कॉस्ट ऑफ मशीन दी नहीं हुई है, वो निकालनी है। If depreciation is charged at 20% per annum by straight line method A and B written down value method. क्वेश्चन लिख लो, फिर इसको करते हैं। Written? Okay. Now, how will we find out cost? Cost हमें दी नहीं हुई, हमें सेल वैल्यू दी हुई है, तो मतलब हमें रिवर्स कैलकुलेशन करनी होगी। कॉस्ट दी होती है तो डेप्रिसिएशन लेस करते करते हम बुक वैल्यू निकालते हैं, फिर हम सेल की वैल्यू पोस्ट करके गेन या लॉस निकालते हैं। इसमें हमें रिवर्स चलना है, सेल से स्टार्टिंग होगी हमारी। सो पहले स्ट्रेट लाइन मेथड से देखते हैं। सॉल्यूशन ए, बुक वैल्यू पहले हम निकालेंगे ऑन द डेट ऑफ सेल। कैसे निकालेंगे? सेल वैल्यू प्लस लॉस ऑन सेल। 57,000 की ये मशीन बिकी है 600 के लॉस पे, इसका मतलब इसकी बुक वैल्यू थी 57,600। अगर ये 600 का गेन होता तो प्लस की जगह माइनस कर देते बुक वैल्यू निकालने के लिए। तो पहली स्टेटमेंट ये लिखो, बुक वैल्यू ऑन डेट ऑफ सेल इक्वल्स सेल वैल्यू प्लस लॉस ऑन सेल इक्वल्स 57,000 प्लस 600 इक्वल्स rupees 57,600. Now
What next? If purchase price was 100, let us assume the purchase price original cost was 100. तो अभी तक कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज हुई होगी? 20% पर एनम है और 2.5 years के लिए हम यूज कर चुके हैं मशीन. सो फर्स्ट ईयर 20 डेप्रिसिएशन चार्ज हुई होगी, नेक्स्ट ईयर फिर 20 चार्ज हुई होगी, और थर्ड ईयर में क्योंकि हाफ ईयर यूज हुई है तो 10 डेप्रिसिएशन चार्ज हुई होगी. दैट मीन्स फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज till the date of sale, total depreciation charged is 50%. So book value on the date of sale 100 की कॉस्ट थी, 50 डेप्रिसिएशन लग गई तो बुक वैल्यू कितनी बची? रिमेनिंग 50%. सो बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल इक्वल्स 50% ऑफ कॉस्ट. Now we can apply unitary method. If 57,600 is 50% of purchase price, हमने बुक वैल्यू निकाली 57,600 और 100 जब हमने एज्यूम की कॉस्ट तो वो आया 50%, बुक वैल्यू शुड बी 50%. दैट मीन्स 57,600 इज 50% ऑफ परचेज प्राइस और कॉस्ट. इसका मतलब कॉस्ट या परचेज प्राइस कितना था? 100/50 कर दो 57,600 को, यानी डबल कर दो. 57,600 अगर हाफ है कॉस्ट का तो कॉस्ट इसकी डबल होगी. दैट मीन्स कॉस्ट वॉज 1,15,200 रुपीज. क्लियर? अब आते हैं पार्ट बी पे. रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड था अगर डेप्रिसिएशन का. उसमें भी बुक वैल्यू तो सेम है तो पहली लाइन तो सेम आ जाएगी. बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल इक्वल्स सेल वैल्यू प्लस लॉस ऑन सेल इक्वल्स 57,000 प्लस 600 इक्वल्स रुपीज 57,600. अब हमने कैलकुलेट क्या करना है कि इस पे डेप्रिसिएशन कितनी लगी अभी तक. फिर से हम 100 एज्यूम करेंगे कॉस्ट को. इफ परचेज प्राइस वाज 100, डेप्रिसिएशन चार्ज टिल द डेट ऑफ सेल विल बी हाउ मच? अब रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है तो हर साल सेम अमाउंट नहीं होगा. कॉस्ट वाज 100 तो फर्स्ट ईयर में 20% के हिसाब से कितनी डेप्रिसिएशन लगी होगी? 20 रुपीज. बैलेंस कितना बचा? 80 रुपीज सेकेंड ईयर के बिगिनिंग में. फिर सेकेंड ईयर में 80 का 20% डेप्रिसिएशन लगी होगी. सो सेकेंड ईयर डेप्रिसिएशन इज 16 रुपीज. और थर्ड ईयर के बिगिनिंग में बैलेंस ब्रॉट डाउन हुआ 64. थर्ड ईयर में हाफ ईयर में ये सेल हो गई है तो 64 का 20% की जगह 10% लग जाएगा हाफ ईयर. चाहे आप डायरेक्ट 10% निकाल लो चाहे 20% निकाल के हाफ कर दो, you will get the same answer. So that means third year depreciation for half year is 6.4. So total depreciation over these 2.5 years equals 20 plus 16
plus 6.4 equals 42.4. मतलब इस मशीन पे अभी तक 42.4% डेप्रिसिएशन लग चुकी है। तो बुक वैल्यू कितनी रह गई? 100 में से इसे माइनस कर दो। So book value on the date of sale equals 100 minus 42.4, that is 57.6% of cost. This means 57,600 जो बुक वैल्यू है वो कॉस्ट का 57.6% है। तो कॉस्ट कितनी होगी? इसको 100 अपॉन 57.6 से मल्टीप्लाई कर दो। If 57,600 is 57.6% of purchase price, then purchase price equals 100 upon 57.6 into 57,600 equals rupees 1 lakh. ये कॉस्ट आ गई। Is it clear? हेडिंग लिखो एसेट डिस्पोजल अकाउंट। पहले एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं इसका। एसेट डिस्पोजल अकाउंट क्या होता है? जब हम किसी एसेट को सेल करते हैं इन द ईयर ऑफ सेल, वी सी सेवरल पोस्टिंग्स कम इन द एसेट अकाउंट. One is for charging depreciation, then for posting the sale of the asset by bank account, then we show loss or gain on sale of the asset, then we charge depreciation on the remaining asset in the asset account at the year end, and then we balance and close the asset account. This process can be simplified if we create another account called asset disposal account. फिर हम क्या करेंगे? सेल से रिलेटेड जितनी भी पोस्टिंग है, चार्जिंग डेप्रिसिएशन, पोस्टिंग सेल, पोस्टिंग लॉस और गेन ऑन सेल, that all will be done separately in asset disposal account. So this is the concept. ये आपको तभी करना है मेनली जब क्वेश्चन में स्पेसिफिकली कहा गया हो कि एसेट डिस्पोजल अकाउंट बनाना है। ठीक है? So asset disposal account is a separate account to show the details of sale or disposal in any other way of an asset. Accounting treatment क्या करनी है ऐसे केस में जब asset disposal account बनाना है? First point, the value of asset being sold is transferred from asset account to asset disposal account on the date of sale. Entry is asset disposal account debit to asset account. लिख लो ये। Then second point, charge depreciation on asset. Depreciation asset account में नहीं लगेगी अब। ठीक है? जो पोर्शन सेल हो गया है, ये जो एसेट सेल हो गया है, उस पर डेप्रिसिएशन अब एसेट के अकाउंट में नहीं लगेगी। अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं है तो डेप्रिसिएशन कहां लगेगी? अब सीधे एसेट डिस्पोजल में। सो एंट्री विल बी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट।
if accumulated depreciation account is there, तब डेप्रिसिएशन पहले एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में लगेगी और फिर वहां से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एसेट डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। तो पहले डेप्रिसिएशन चार्ज करने की एंट्री तो वही रहेगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, जो अदरवाइज होती है इन केस ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। बट इमीडिएटली आफ्टर दैट हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर कर देते थे वहां से एसेट अकाउंट में। अब वो एसेट अकाउंट में ट्रांसफर ना होके इट विल बी ट्रांसफर टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट। सो सेकेंड एंट्री विल बी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट। रिटर्न, तो ये डेप्रिसिएशन भी चार्ज हो गई और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अगर है वो ट्रांसफर भी हो गई एसेट डिस्पोजल में। उसके बाद थर्ड स्टेप, द सेल ऑफ एसेट इज रिकॉर्डेड यूजिंग एसेट डिस्पोजल अकाउंट। तो पहले हम सेल की एंट्री करते थे, पोस्टिंग करते थे बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट। अब क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट। तो एसेट डिस्पोजल अकाउंट में अब क्या क्या पोस्टिंग आई, पहले डेबिट साइड पे आ जाएगा वैल्यू ऑफ एसेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम एसेट अकाउंट, फिर क्रेडिट साइड पर आएगा डेप्रिसिएशन चार्ज या फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ट्रांसफर्ड, फिर बाय बैंक। अब जो बैलेंसिंग फिगर बचेगी एसेट डिस्पोजल अकाउंट में, दैट विल बी दी गेन और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। अगर डेबिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर आएगी एसेट डिस्पोजल अकाउंट में, दैट विल बी गेन ऑन सेल ऑफ एसेट। अगर क्रेडिट साइड पे आएगी तो दैट विल बी लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। क्लियर? Now we will do an illustration to see practically how this asset disposal account is treated in accounts. ये क्वेश्चन लिख लो, उसके बाद अराउंड 10 लाइंस का वर्किंग नोट्स का स्पेस छोड़ दो और 3 फॉर्मेट्स बना लो। इन द बुक्स ऑफ नीलिमा एंटरप्राइजेज, व्हीकल्स अकाउंट, accumulated depreciation account and vehicle disposal account of around 10 lines each. Okay, write this question, make these formats, and we'll attempt it in the next class because इस क्लास में रिमेनिंग टाइम में ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो इसे नेक्स्ट क्लास में अटेम्प्ट करेंगे। आप ये क्वेश्चन लिख के और फॉर्मेट्स बना के रखना नेक्स्ट क्लास के लिए। ओके, एनी डाउट्स, एनीवन? Okay, so we end today's class over here. Thank you.